Good morning, students. Now, today's part is significant figures. Now, rules for deciding significant figures. There are totally 7 rules are there to decide significant figures. Number 1 is all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. That is rule number first. For example, 127.34 127.34 gram contains 5 significant figures which are 1, 2, 7, 3 and 4 because they are non-zeros. All non-zero digits are significant. That is rule number first. Now rule number second. All zeros between two non-zero digits. All zeros between two non-zero digits are significant. Between two non-zero digits are significant. For example, 120.007, 120.007 meter contains 6 significant figures and they are 120,007. 6 significant figures. Because of these 3 zeros are in between two non-zero digits. So that's why all zeros between two non-zero digits are significant. That is rule number second. Rule number third. Zeros on the left of the first non-zero digits. Zeros on the left of the first non-zero digits are not significant. Such a zero indicates the position of the decimal point. Such a zero indicates the position of the decimal point. For example, 0.025 has two significant figures because of zeros on the left hand side of first non-zero digit are not significant. So these two zeros are not significant. 2 and 5. 2 and 5 means it has two significant figures. Second example, 0.005 has one significant figure. 0.005 has one significant figure. In this number, 3 zeros are not significant and 5 is significant. So only one number is there. So 5 is the significant figure, but 3 zeros are not the significant figures. Okay, that is rule number 3. Rule number 4. Zeros at the end of the number, zeros at the end of the number are significant. Zeros at the end of the number are significant if they are on the right hand side of the decimal point. This is very important. They are on the right hand side of the decimal point. That is, for example, 0.400. लेफ्ट हैंड साइड में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन 4 के राइट में डेसिमल पॉइंट के राइट में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है. सो देयरफॉर 0.400 ग्राम हैज 3 significant figures. It has 3 significant figures, that is 4, 0 and 0. Okay, but left hand side का 0 ये significant figure नहीं है. One more example, 400. इन दिस एग्जाम्पल यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसलिए राइट हैंड साइड के 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आएंगे. डेसिमल पॉइंट होना चाहिए और डेसिमल पॉइंट के राइट में अगर 0 होंगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं. लेकिन यहाँ पर 400 में डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसलिए राइट के 2 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे. सो इसमें 400 ग्राम हैज़ ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर. 400 ग्राम हैज़ ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर. दैट इज रूल नंबर 4. रूल नंबर 5. In numbers written in scientific notation,
scientific notation 10 raised to 3 or 10 raised to minus 4. This is a scientific notation. In numbers written in scientific notation, all digits are significant. All digits are significant figures. Okay. So, for example, first one 2.035 into 10 raised to 2. 10 रेज टू 2 ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आएगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है वो सिग्निफिकेंट, सभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. सो 2.035 इंटू 10 रेज टू 2 हैज 4 significant figures and the numbers are 2035. These are significant figures. One more example, 3.25 into 10 raised to minus 5 has 3 significant figures and the numbers are 325. These are 3 significant figures. Rule number 6, terminal zeros are not significant. Terminal zeros are not significant if there is no decimal point. ऊपर भी दिया है ये रूल, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो टर्मिनल जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देर इज नो डेसिमल पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल 1000, 1000 has only one significant figure because of there are 3 terminal zeros because of no decimal point. So 1000 में only one significant figure है, that is 1. Okay, so that is rule number 6. And last number rule, significant figures are also indicated in scientific notation. Significant figures are also indicated in scientific notation by means of decimal point. Significant figures are also indicated in scientific notation by means of decimal point. For example, 400 has one significant figure. 40.0 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, डेसिमल पॉइंट है, सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. एंड लास्ट वन 4.00 इंटू 10 रेज टू 2. दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन. 4.0 मैंने ऊपर के 2 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिए हैं, 400 and 40.0. Exactly scientific notation is 4.00. Okay, so 400 has only one significant figure, 40.0 has 3 significant figures, and 4.00 into 10 raised to 2 has 3 significant figures. पहले इसमें एक ही है क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है, दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल में 3 significant figure है क्योंकि it contains decimal point. Okay, now few more examples are given. देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस टेबल, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल. फर्स्ट वन इज 4.065. इसमें डेसिमल पॉइंट है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे 4. 0.32 लेफ्ट का 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो डेसिमल पॉइंट के राइट के कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2. ओके, नाउ नेक्स्ट वन नॉन 0 डिजिट है यहाँ पर सभी 57.98, सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. फोर्थ एग्जाम्पल 307.00, 307.100, 307.100 इंटू 10 रेज टू माइनस 5. तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के राइट में 0 है, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर है, और लेफ्ट के भी सिग्निफिकेंट फिगर है. सो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 6. ओके, नाउ 604.0820 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स. डेसिमल पॉइंट है इसलिए राइट के 0 सभी सिग्निफिकेंट फिगर है. टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 7. ओके, सिक्स्थ एग्जाम्पल 4.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 दिया है ऊपर, 4.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 4. सो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2. 0.02 यहाँ पर लेफ्ट साइड के दोनों 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आएंगे, लेफ्ट के दोनों भी 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आएंगे. सो देयरफॉर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, only one, that is 2. 2 is the number 2 is a significant figure. Okay, so next example, that is 8th one, 30.0 into 10 raised to minus 1. 30.0 into 10 raised to minus 1. इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 है क्योंकि डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के राइट के जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं. सो 30.0
into 10 is to minus 1 has 3 significant figures, and last one 0.00910 लेफ्ट के 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो कौन कौन है सिग्निफिकेंट फिगर? 9, 1 and 0. So 9, 1 and 0, that is 3 significant figures. Okay, so this is significant figures. Few more examples are there. ये example आपको इसी मैनर में ऐसे ही टेबल निकालना है. यहाँ पर एम्प्टी टेबल दिया है. एसएफ मीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं. ओके, यहाँ पर भी दिए हैं. सो 20 एग्जाम्पल्स आर देयर. 20 एग्जाम्पल. जितने आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी. तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ. तो फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल. ओके, दिस इज द टूडेज होमवर्क, फर्स्ट होमवर्क. नेक्स्ट पार्ट इज राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग ऑफ हमने पहले या दूसरे लेक्चर में देखा है. ओके, राउंडिंग ऑफ, अगर 5 से बड़ा होगा नंबर तो उसके पहले का नंबर 1 से बढ़ा देते हैं. दैट इज राउंडिंग ऑफ. ओके, सो देयर आर 2 रूल्स इन राउंडिंग ऑफ. फर्स्ट वन इज, व्हाट इज द फर्स्ट रूल इन राउंडिंग ऑफ? इफ द डिजिट फॉलोइंग द लास्ट डिजिट, if the digit following the last digit to be kept is less than 5. If the digit following the last digit to be kept is less than 5, the last digit kept unchanged. The last digit kept unchanged. Okay, जिस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है उसके आगे का नंबर अगर 5 से कम होगा तो जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है वो वैसे के वैसे ही रखना है, उसे चेंज नहीं करना है. इफ द डिजिट फॉलोइंग द लास्ट डिजिट, if the digit following the last digit to be kept is less than 5, the last digit kept unchanged. For example, 46.32, round off to 2 significant figures. 46.32, इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हमें राउंड ऑफ करना है. तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 46. तो 46, 6 के आगे का नंबर कौन है? 3. 3 इज लेस देन 5. दिस नंबर वी हैव टू राउंड ऑफ इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर. यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 है. दैट इज 4632. तो इसे हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है. तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स 4, 6. 6 के बाद कौन है? 3. 3 is greater than 5 or less than 5? It is less than 5. Okay, so that's why the last digit kept unchanged means 6 is kept unchanged. तो 2 significant figure क्या आएगा? 46 is the rounding of this figure. Okay, second rule is, if the digit following the last digit, if the digit following the last digit to be kept is 5 or more, if the digit following the last digit to be kept is 5 or more, the last digit to be kept is increased by 1. जिस डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना है उसके आगे का डिजिट 5 या फिर 5 से ग्रेटर होगा. जिस डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना है उसके आगे का डिजिट अगर 5 और 5 से ग्रेटर होगा तो उसके पहले नंबर को हमें 1 से बढ़ा देना है. ओके, सो दैट इज द रूल. इफ द डिजिट फॉलोइंग द लास्ट डिजिट टू बी केप्ट इज 5 और मोर, द लास्ट डिजिट टू बी केप्ट इज इंक्रीज बाय 1. फॉर एग्जाम्पल 52.87. इन दिस हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 4. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4 है. तो अभी इस फिगर को हमें क्या करना है? राउंडेड 52.87 राउंडेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमें इसे राउंड ऑफ करना है. सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आएंगे? 5 to 8. ओके, तो 8 के बाद का नंबर 5 से ग्रेटर है और लेस है? इट इज़ ग्रेटर देन 5. सो दैट्स वाई 7 के पहले 8 है, उसे 8 को हमें 1 से बढ़ा देना. इट इज इंक्रीज बाय 1. सो 8 को 1 से इंक्रीज करने के बाद 8 का क्या हो जाएगा? 9. सो इट इज राउंडेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एज 52.9. ओके, सो दिस इज द राउंडिंग ऑफ. नाउ
फ्यू मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन। मैं यहाँ पर मैंने और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं और आपको सॉल्व करने के लिए भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, राउंड ऑफ फॉलोइंग नंबर्स टू द significant indicated, राउंड ऑफ फॉलोइंग नंबर्स टू द सिग्निफिकेंट इंडिकेटेड। यहाँ पर इंडिकेट किया है कितने सिग्निफिकेंट फिगर में हमें राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट एग्जांपल 1.223 टू टू डिजिट्स, 1.223 टू डिजिट्स। अभी टू डिजिट क्या आएगा, 1 2 आएगा। ओके, टू के बाद में कौन है, 2 है, इट इज़ लेस देन 5, सो दैट्स वाई टू सिग्निफिकेंट फिगर में टू डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो टू वैसे कि वैसे ही रहेगा, इट इज डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स अनचेंज, सो टू डिजिट में क्या आएगा, 1.2। ओके, नाउ सेकेंड वन 12.56 टू थ्री डिजिट, थ्री डिजिट में हमें इसे राउंड ऑफ करना है, तो थ्री डिजिट कौन है, 1 2 5, 5 के बाद का नंबर इट इज ग्रेटर दैन 5, सो दैट्स वाई 5 को 1 से बढ़ा देना है। 5.56 राउंड ऑफ टू थ्री डिजिट, तो थ्री डिजिट में हमें इसे राउंड ऑफ करने के लिए 5, लास्ट थर्ड डिजिट कौन है, 5, 5 के बाद का नंबर इट इज ग्रेटर दैन 5, सो दैट्स वाई 5 इज इंक्रीज बाय 1, सो इट इज राउंड ऑफ टू थ्री डिजिट एज 12.5 का क्या हो जाएगा, 6। ओके, थर्ड एग्जाम्पल 122.17 टू फोर डिजिट, इसे फोर डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो फोर डिजिट क्या आएंगे, 1 2 2 1, ये फोर डिजिट आएंगे, तो 1 के बाद का जो डिजिट है इट इज ग्रेटर देन 5, सो दैट्स वाई 1 इज इंक्रीज बाय 1, द नंबर 1 इज इंक्रीज बाय 1, सो दैट्स वाई द फोर डिजिट्स आर 122.2। ओके, नाउ फोर्थ एग्जांपल 231.5 टू थ्री डिजिट, बताओ क्या आएगा, थ्री डिजिट में 1 1 से बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ द नंबर आफ्टर 1 इट इज ग्रेटर देन 5, सो दैट्स वाई 1 इज इंक्रीज बाय 1, सो द थ्री डिजिट्स आर 332। ओके, 332 आ गया। नाउ 4.981 टू वन डिजिट, तो वन डिजिट क्या आएगा, एक ही डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 के बाद का नंबर इट इज ग्रेटर देन 5, तो it is round off to one digit as 5, because of 4 is increased by 1, so that's why it becomes 5. Okay, and last example is 41917.6. Okay, 41,917.6 to 5 digit, तो 5 digit क्या है, 41917, और 7 के बाद का नंबर इट इज ग्रेटर दैन 5, so that's why 7 is increased by 1, and the 5 digits are 41918, 41,918. Okay, so this is rounding off. Now few more examples are given. Round off the following quantities to two significant figures. 4 एग्जाम्पल दिए हैं, उसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ कर दो, और आगे का क्वेश्चन है राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऊपर पहला है क्वेश्चन दिया है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है, और दूसरा क्वेश्चन दिया है उसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, परफॉर्म द फॉलोइंग कैलकुलेशन एंड राउंड ऑफ योर आंसर टू टू डिजिट। ओके, यहाँ पर डिवाइडेशन दिया है, डिवाइडेशन करना है आपको, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसे आपको टू डिजिट में कन्वर्ट करना है। परफॉर्म द फॉलोइंग कैलकुलेशंस एंड राउंड ऑफ योर आंसर टू टू डिजिट। यहाँ पर आप लॉग टेबल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशन करो, और कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसे आपको कितने डिजिट में कन्वर्ट करना है, राउंड ऑफ योर आंसर टू टू डिजिट। ओके, आगे का भी दिया है, मल्टीप्लिकेशन है, 2 मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल है और 2 डिवाइडेशन के एग्जाम्पल है। आपको कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशन, लॉग से कैलकुलेशन करेंगे तो इट इज़ वेरी गुड, लॉग से मैंने आपको लॉग सिखाया है, अगर लॉग से भी कैलकुलेशन करेंगे और 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दो, कैलकुलेटर के ऊपर भी कैलकुलेशन करेंगे तो भी चलेगा। ओके, बट बेटर इज यूज लॉग टेबल। ओके, सो परफॉर्म द फॉलोइंग कैलकुलेशन एंड राउंड ऑफ योर आंसर टू 3 डिजिट। ओके, इसे फाइनली जो 4 एग्जाम्पल दिए है उसे, ऊपर भी 4 एग्जाम्पल है, नीचे भी 4 एग्जाम्पल है, तो इनको आपको 3 डिजिट में राउंड ऑफ करना है। ओके, पहले 2 मल्टीप्लिकेशन के हैं और दूसरे 2 पहले 3
पहले तो मल्टीप्लिकेशन है और तीसरा और चौथा है वो डिवाइडेशन का है। ओके, सो दिस इज द टुडेज पार्ट। आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो हम लोग कल देखेंगे। आज का होमवर्क इतना है। सिर्फ डिफ़िकल्ट ये लास्ट टू है, बाकी राउंड ऑफ करना और सिग्निफिकेंट फिगर निकालना वो आपका 10-15 मिनट में हो जाएगा। इस कैलकुलेशन को थोड़ा वक्त लगेगा, आधा घंटा लगेगा। तो कैलकुलेशन करो और मुझे ओवर राइटिंग नहीं करना है, नोटबुक में ओवर राइटिंग नहीं करना है। ओवर राइटिंग करेंगे तो बहुत ही गंदा लगता है, तो ओवर राइटिंग, अवॉइड द ओवर राइटिंग। ओके, सो दिस टुडेज पार्ट। थैंक यू।